Today we start method to draw the function y equal to fx with the help of dy by dx. To draw the function y equal to fx, we have to do following work. First, we must know the domain of function. Domain of function. Second, we find dy by dx equal to f dash x, and then we discuss the monotonicity of function y equal to fx. That means we discuss the sign of dy by dx. Suppose f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval a to b, and f dash x less than equals to less than 0 for all x belongs to c. If f dash x greater than 0, then it what imply? F dash x greater than 0 implies that y equal to fx is a strictly increasing function. Strictly increasing function in interval a to b. That means its graph increases as x increases. That means y increases as x increases. That means graph goes forward. This line. Either it goes in a straight line, or follow the curve this, or follow the curve this. If f dash x less than 0, then y equals to fx is strictly decreasing in open interval c to b. That means y decreases as x increases, from left to right as x increases, y decreases, y goes down, either in a straight line, or follow the curve this, or follow the curve this, or it may be combination of both, which can be discussed in third step. So we see, to draw the graph, we first know the domain of function. That means we know the value of x where we can draw the graph of given function. After knowing the value of x, we find dy by dx, and then we discuss the sign scheme of dy by dx. dy by dx gives either positive value or negative value. It may be both, sometimes positive or sometimes negative. Suppose f dash x, that will dy f dash x greater than 0 for x belongs to a to b. What it means? It means y equal to fx is a strictly increasing function for this interval in which it is greater than 0. Increasing means y increases as x increases. From left to right, x increases means y also increases, so graph goes in upward direction. While if f dash x less than 0 in the interval c to d, then y equal to fx is strictly decreasing in intervals c to d. Strictly decreasing means as x increases, y decreases. Y decreases, that means when from left to right, we move from left to right
as x increases, y decreases when the graph goes like downward. Either follow the straight line or curve concave down, concave up, which will be decided in next step. Now we come to third step. After knowing the monstrosity of y equal to fx, we find d2y by dx square. That means f double dash x. And then we discuss the sign scheme of f double dash x. Again, there are two possibilities. It may be possible f double dash x greater than 0 for x belongs to interval alpha to beta, or f double dash x less than 0 for x belongs to gamma to delta. If f double dash x greater than 0 in interval alpha to beta, that means curvature of the curve is concave upward. Curvature is concave upward. That means either it follow like this one, or it portion of this like this one, like this one. If graphs follow increasing and decreasing both, then it follow the graph pattern this. If it is decreasing portion and concave upward, then this one. If it is increasing function and concave upward, then this one. If f double dash x less than 0 for all x belongs to gamma to delta, that means curvature is concave down. Concave downward means like this one, or portion of it this one or this one. अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, फर्स्ट इंक्रीज करके देन डिक्रीज करके जाता है, तो पूरा पैटर्न लेगा. अगर सिर्फ इंक्रीज करेगा मतलब इट ओनली फॉलो द इंक्रीजिंग एंड concave डाउनवर्ड, देन दिस वन. इफ डिक्रीजिंग सिर्फ डिक्रीज कर रहा है और concave डाउनवर्ड है, तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा. ठीक है, ये तीन चीजें हैं मेन टू ड्रॉ द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस दैट dy by dx. इन तीन चीज़ों पे हम लोग मेन फोकस करते हैं. फर्स्ट डोमेन. अब सवाल है कि क्या हम डोमेन निकालने जाएंगे, तो हमें जो ग्राफ फंक्शन दिया जाता है वो बिल्कुल ऑब्वियस रहता है, जिसमें हमें दिख जाता है कि किन एक्स के लिए डिफाइंड है. हमारा पर्पस यही है कि किन एक्स के लिए डिफाइंड है, किस एक्स के लिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं. ऐसा ना हो कि जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ हम ग्राफ को एक्सटेंड करके ले जाए. तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ग्राफ कहाँ तक खींच सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा. इसलिए हमें डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है. वो आपको ऑब्वियस रहता है, वो दिख जाता है. मेनली आपको सेकेंड और थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. पहले सेकेंड स्टेप में आपने देखा, क्या देखा आपने, dy by dx निकालेंगे. dy by dx निकालने के बाद उसकी हम लोग क्या करेंगे, साइन स्कीम चेक करेंगे. साइन स्कीम चेक करने के बाद अगर हमारे पास dy by dx पॉजिटिव आया था, तो इसका मतलब था ग्राफ इंक्रीजिंग, स्टेपली इंक्रीजिंग. अगर dy by dx निगेटिव आया था, इसका मतलब ग्राफ स्टेपली इंक्रीजिंग. हो सकता है फंक्शन पूरे डोमेन में स्टेपली इंक्रीजिंग, हो सकता है ग्राफ पूरे डोमेन में स्टेपली इंक्रीजिंग, और ये भी हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ डोमेन में स्टेपली इंक्रीजिंग हो और सम पार्ट ऑफ डोमेन में स्टेपली डिक्रीजिंग. तो जैसे हमने दिखाया था कि ए से बी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, सी से डी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था. वो हो सकता है ए से बी आपका पूरा डोमेन हो या पार्ट ऑफ डोमेन. ठीक है. देन थर्ड स्टेप आता है कि अब आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लिया, तब पता चलेगा ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा या नीचे तरफ जाएगा. तब पैटर्न डिसाइड करना था कि किस पाथ को फॉलो करेगा. तो उस पर सेकेंड डेरिवेटिव जो कर्वेचर को हमें डिफाइन करता है. सेकेंड डेरिवेटिव का होता है कि हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, फिर साइन स्कीम चेक किया. अगर मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव किसी एक इंटरवल अल्फा से बीटा में अगर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब concave upward की तरफ concave upward होगा.
उसका फेस ऊपर तक से कनकेव दिखाई देगा। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 है एक इंटरवल गामा से डेल्टा में, तो इसका मतलब है कि ग्राफ का नेचर कर्वेचर जो होगा कनकेव डाउन होगा। कनकेव डाउनवर्ड करने में तो आप नीचे से देखेंगे तो उसका शेप कनकेव डाउन दिखाई देगा। इस कनकेव डाउन को हम कन्वेक्स अप बोल सकते हैं। आप कनकेव अप को कन्वेक्स डाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे से देखेंगे तो कन्वेक्स दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो कन्वेक्स दिखाई देगा। ये तो नेचर में पता चल गया कि कनकेव अप कनकेव डाउन जाएगा, ऊपर जाएगा, इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ग्राफ बनाने में ये मेन तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को सब। लेकिन अगर ग्राफ बनाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और होता है कि उस ग्राफ में 1-2 पॉइंट जरूर मार्क किया होना चाहिए। मतलब एक्सिस की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो किन पॉइंट से पास करता है, एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट्स उसमें जरूर मार्क कीजिए कि थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया दे सके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को करके हम लोग देखते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है। Draw the graph of y equal to x square minus 5x plus 6. Y equal to x square minus 5x plus 6 एक क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका हमें ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ अब देखा जाए, हमने कहा था 3 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो पहला चीज़ तो मैंने कहा था बिल्कुल ऑब्वियस रहेगा, जो आपको दिख जाएगा कि डोमेन मतलब किन एक्स के लिए डिफाइंड है। तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो होता है हर एक्स के लिए डिफाइंड है, कोई भी एक्स ले रखेंगे वाई डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं हमारे पास, डोमेन इसका ऑल रियल होगा। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि आप इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि फर्स्ट पॉइंट डोमेन हमने नहीं लिखा। डी बाई डी एक्स मेरे पास आ गया 2x - 5। अब इसका अगर साइन स्क्रीन देखें तो देखा जाए नंबर लाइन पे 0 हो रहा 5/2 पे। 5/2 के राइट में अगर आप चलते हैं तो बड़ा लिख देते हैं। 5/2 के राइट में अगर चलते हैं तो किसी भी एक्स को देखेंगे तो इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर किसी भी एक्स को देखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने के मतलब ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आने का मतलब ये ग्राफ इंक्रीजिंग। फिर आपका आता सेकेंड पॉइंट मतलब थर्ड पॉइंट जिसका था कर्वेचर चेक करना, d2/dx d2/dx पर निकालेंगे जो कि 2 है और ये 2 है पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा कनकेव अपवर्ड है, इसमें कोई कनकेव डाउनवर्ड की बात नहीं होगी। अब हमें ये पता चल गया ग्राफ कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, कर्वेचर कैसा रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। देखा जाए अब किन पॉइंट को मार्क किया जाए। तो वैसे जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो पॉइंट लिया था ए बी अल्फा बीटा इंटरवल में आया था, ये सब कुछ पॉइंट्स होंगे जो ऑब्वियस पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को ले सकते हैं या कुछ और पॉइंट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए ये टर्निंग पॉइंट है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाने में 5/2 है। तो हम 5/2 पे फोकस x को 5/2 जब रखते हैं तो y की वैल्यू देखते हैं। जब x को आप 5/2 रखेंगे तो y आपके पास आएगा -1/4। कितना आगे -1/4। तो आप यहाँ पे -1/4 लिखेंगे। अब -1/4 मतलब ग्राफ ऊपर से पहले नीचे आ रहा था, अब -1/4 तक जाएगा, फिर -1/4 से अब ऊपर है। अब सवाल ये है कि ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे ये ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था। तो देखेंगे y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ x 0 होता है। तो अगर हम x को 0 करते हैं तो y 6 है, मतलब ये y एक्सिस को x एक्सिस को ऊपर कट करता है, ये ऊपर से आएगा ऐसे ही आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मेरा ग्राफ नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने रफ स्केच खींचा है, तो मेरा ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा। अब मेरा बात है कर्वेचर। तो कर्वेचर देखो कनकेव ऑफ है, तो कनकेव ऑफ है तो बिल्कुल फ्री है, इसी को सपोर्ट लेते हुए ये बॉटम पॉइंट है, यहाँ सपोर्ट लेते हुए कनकेव ऑफ ऐसे जाएगा, इसी को सपोर्ट लेते हुए कनकेव ऑफ ऐसे जाएगा और ये हमने मिटा दिया। तो आप भी खींचेंगे, पहले जो इसको हमने मिटाया वो डॉटेड खींचेंगे। ये चूँकि 2 पार्ट में खींचा इसलिए आपको यहाँ कॉर्नर दिखाई देता होगा, एक्चुअली यहाँ कॉर्नर नहीं होगा, ये बिल्कुल स्मूथ कर्व होगा, स्मूथ टर्निंग होगी और ये आपका जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर
पैराबोला आप जानते हैं, तो ये पैराबोला है, पैराबोला का ये वर्टेक्स है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा था 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड है। डिफाइन होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर एक्स के लिए डिफाइन होता है, मध्य ग्राफ पूरे नंबर लाइन पर पूरे एक्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो हमने कहा डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, 0 हो रहा 5/2 पे, 5/2 के अराउंड में हमने साइन स्कीम देखा। इधर के किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इधर के किसी भी एक्स के लिए नेगेटिव आ रहा है। इधर पॉजिटिव होने का मतलब ये इंक्रीजिंग है, इधर नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होने के बाद हमने कहा था कि हम लोग सेकंड चीज देखेंगे क्या, कर्वेचर। कर्वेचर हमें कहाँ से आइडिया मिलेगा, d2/dx²। तो d2/dx² निकाला, d2/dx² में फर्स्ट 2 आया, 2 जो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज करके वापस हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हमें मार्क करना था, तो ये पॉइंट हमें मिला हुआ, इसी पॉइंट को ले लेते हैं। 5/2 पे y -4 आ गई। अब ये ग्राफ पहले डिक्रीज गया, पहले ऊपर से नीचे आया, अब फिर नीचे से ऊपर गया। कर्वेचर कनकेव ऑफ सपोर्ट उसी को लेते हुए फ्री हैंड कनकेव ऑफ खींच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Draw the graph of y = x³ - 3x + 1. y = x³ - 3x + 1. अगेन ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है, हर x के लिए रियल x के लिए डिफाइंड है, इसलिए हमारे लिए डोमेन कोई कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसमें हमें 2 चीज़ देखनी है, मोनोटोनिसिटी और कर्वेचर। मोनोटोनिसिटी कहाँ से निकलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx। dy/dx क्या आएगा, 3x² - 3। इसको फैक्टराइज करेंगे, साइन स्कीम देखेंगे आप, तो x² - 1, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × x - 1 x + 1। आप सब जानते हैं साइन स्कीम कैसे लेते हैं, नंबर लाइन को नंबर को मार्क करेंगे जहाँ ये डिफाइंड हो, 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 कहाँ का हो रहा है, -1 और 1। 1 के राइट में कोई भी अगर पॉइंट रखते हैं, मतलब x 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा होगा तो x + 1 पॉजिटिव होगा और x + 1 भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेते हैं, तो -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा तो x - 1 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। पॉलिनोमियल में आपको मालूम है, पॉलिनोमियल में साइन स्कीम इस तरह से होता है कि अगर वो जहाँ 0 और नॉट डिफाइंड है उन्हीं पॉइंट पर साइन चेंज करता है, इसके बीच में किसी पॉइंट पर साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि साइन चेंज करने के लिए उसके फैक्टर को कहीं ना कहीं 0 होना पड़ता है, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। इसके पीछे कहीं 0 नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कोई साइन चेंज करेगा। तो एक तरीका ये भी है कि इसके पीछे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे x को 0 देखते हैं, x को 0 रखेंगे, -1 + 1 मिलकर क्या होगा, -1, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये d/dx का साइन स्कीम है, तो पॉजिटिव आने का मतलब ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा, नेगेटिव आने का मतलब ग्राफ नीचे तरफ जाएगा, पॉजिटिव आने का मतलब ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा। तो आपको आइडिया मिल गया कि -∞ से -1 तक ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर -1 से 1 तक डिक्रीज करेगा, फिर 1 से ∞ तक क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद बात कर रहा था हमने सेकंड पॉइंट, d2/dx² निकालेंगे आप। तो d2/dx² जो हो गया 6x आ गया। ये 0 हो रहा है, 0 पे राइट में हमेशा पॉजिटिव देगा, 0 पे लेफ्ट हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कनकेव डाउन, पॉजिटिव मतलब कनकेव। 0 से पहले इसका कर्वेचर हमेशा कनकेव डाउन रहेगा, 0 के बाद कर्वेचर हमेशा कनकेव अप रहेगा। यहाँ पर कर्वेचर आइडिया लगती है। अब इन 2 चीज़ों के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। हमने कहा था ग्राफ में कुछ पॉइंट मार्क करना चाहिए, तो पॉइंट मार्क करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 3 पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, जो एक -1 है जो टर्निंग पॉइंट होगा, 1 भी टर्निंग पॉइंट है, और ये जहाँ कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। अब ऐसे पॉइंट जहाँ कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो डिस्कस करेंगे आगे के बारे में। जस्ट से कोट कर दिया मैंने, ग्राफ बनाए रहे। अब जाते हैं
यहाँ है -1, ये है 1, ये कर्वेचर का पॉइंट भी देख रहा। आपका जो इक्वेशन था फंक्शन x³ - 3x + 1, x को -1 रखेंगे तो क्या था -1 + 3 + 1 कितना होगा +3। x को 1 देंगे तो 1 - 3 + 1 -1 1 के सामने -1, ठीक है। 0 पे प्लेन गेजिंग देखने की बात करते हैं। रफ स्केच, ये सपोर्ट लाइन बनाना है कि अगर आप प्लेन गेज कर रहे हैं, गेज करके डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके फिर ये इंक्रीज करेगा। अब आती है बात, ये पता चल गया कि पहले ये इंक्रीज करके यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से कट करके यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बढ़ करके ऊपर तक चलता जाएगा। अब सवाल है किस रास्ते से कौन सा कर्वेचर यूज करेगा, तो कर्वेचर ये बताता है 0 से पहले, तो 0 पे 1 दे रहा था, ये 0 पे 1, 0 से पहले ये कर्वेचर कनकेव डाउन है, बिल्कुल फ्री हैंड कनकेव डाउन बनाना है, जिसके पीक यहाँ होना चाहिए और ऐसे डाउन कर सकते हैं। इधर कनकेव अप होगा, बिल्कुल फ्री हैंड कनकेव अप बनाना है, इसका बॉटम यहाँ पे होगा, ये कनकेव डाउन अप, और ये सपोर्ट लाइन जिसको हमने डॉटेड बनाया था ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसको हमने मिटा दिया। आप हल्के माइंड से बनाएंगे लाइट से, तो आपके ये पॉइंट हो गया कौन सा -1,3, और ये पॉइंट कौन सा हो गया 1,-1। ये जो पॉइंट है जहाँ कर्व अपना कर्वेचर बदल रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अभी दो ग्राफ देखा आपने, पहला क्वाड्रेटिक देखा, दूसरा क्यूबिक देखा, दोनों में देखें क्या जो बताया गया तो उससे कुछ अलग यूज किया जाए, बिल्कुल नहीं। पहला काम डोमेन जो हमने कहा था बिल्कुल ऑब्वियस हमें दिख जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेगा। तीसरा हमने कहा था कर्वेचर चेक करेगा। इन्हीं तीन के आधार बात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Draw the graph of y equal to x into e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर x के लिए डिफाइंड है और x भी हर x के लिए डिफाइंड है। यहाँ भी डोमेन पे कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। अब इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो पहला dy by dx निकालते हैं। dy by dx क्या है, u इंटू v लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, x into derivative of e की power x with respect to x plus e की power x into derivative of x with respect to x। तो x into e की power x plus e की power x, x plus 1 into e की power x, ये 0 हो रहा है -1 के आगे ये हमें पॉजिटिव देगा, इधर नेगेटिव देगा, मतलब पहले घटेगा ग्राफ, इंक्रीजिंग है फिर ये इंक्रीजिंग। फिर इसका dt by dx स्क्वायर आप निकालेंगे, dx स्क्वायर निकाला आपने, डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 into e की पावर x with respect to x, ये आप डिफरेंशिएट करेंगे u into v से, तो आपके पास आ जाएगा x plus 2 into e की पावर x। ये 0 पर -2 पे इधर पॉजिटिव देगा, इधर नेगेटिव देगा, मतलब इधर कनकेव डाउन, इधर कनकेव। वही काम कर रहे हैं जो पहले भी काम किए। अब ग्राफ बनाने की -1 पे x की वैल्यू अगर x को -1 देंगे तो क्या है, x को -1 देने से y कितना होगा -1 into e की पावर -1 by तो समथिंग है e की पावर -1 by e। यहाँ भी इससे पहले ये डिक्रीज किया, मतलब इससे पहले डिक्रीज किया था, ग्राफ या तो ऊपर से आएगा या ऐसे। अब सवाल ये ऊपर x के ऊपर से आएगा या x के नीचे से आएगा, तो देखिए ध्यान से e की पावर x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। तो अगर x निगेटिव है तो निगेटिव है, तो फोर नेगेटिव x ये पूरा का पूरा निगेटिव होगा, तो ग्राफ ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब x के नीचे से ही ऐसे घट जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, 0 पे 0 होगा, ऐसे चलेगा। कर्वेचर -2 पे यहाँ चेंज करेगा तो यहाँ तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा, इधर कनकेव
डाउन होगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू और ऐसा होगा। क्योंकि हमने दो पार्ट बनाए थे, आपको कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ ही है, तो कर्वेचर अपने क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज करके इस तरह से हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, पी आई मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये लेवल मिनिमम का पॉइंट होगा, या एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोटे किए जाते हैं। कुछ ग्राफ बनाएंगे आप, y इक्वल्स टू एक्स टी की पावर माइनस एक्स, y इक्वल्स टू एक्स ln x, y इक्वल्स टू एक्स बाई टी की पावर x। इनका ग्राफ चलिए सेम है, टी की पावर एक्स माइनस, इन तीन का ग्राफ बनेगा इसी पैटर्न पे। और फिर हम लोग अगली क्लास में कुछ और ग्राफ की बात करेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आगे की बात करेंगे।